ہم خبر دیں گے۔ سب سے پہلے اپنے ناظرین کو بتائیں گے بانی پی ٹی آئی کا پمز ہاسپٹل میں آنکھ کا دوسرا معائنہ کیا گیا ہے۔ متاثرہ آنکھ کی بینائی کے لیے دوسرا انجیکشن لگا دیا گیا۔ پمز کا یہ اعلامیہ جاری کیا گیا ہے۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹر پمز کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو NTVEGF انٹراورٹیل انجیکشن کی دوسری خوراک دی گئی ہے اور بانی پی ٹی آئی کی رضامندی کے بعد انجیکشن لگایا گیا ہے۔ ماہر آئی سرجنز نے طبی معائنے کا عمل مکمل کر لیا۔ ماہر ڈاکٹرز کے بورڈ نے بانی پی ٹی آئی کا معائنہ کیا۔ ماہر سے دوسری خوراک دی گئی ہے۔ علاج سے پہلے اور بعد میں بانی پی ٹی آئی کی طبی حالت مستحکم رہی۔ ڈاکٹرز نے بانی پی ٹی آئی کے دل کے ٹیسٹ ایکو اور ECG کو نارمل قرار دے دیا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کو فالو اپ مشورے اور نسخے کے ساتھ اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا ہے۔ اور وزیر اعظم شہباز شریف امیر قطر کی دعوت پر 2 روزہ سرکاری دورے پر قطر پہنچ گئے ہیں۔ قطر کے وزیر مملکت وزارت خارجہ امور قطر میں تعینات پاکستانی سفیر نے وزیر اعظم کا استقبال کیا، جبکہ وفاقی وزراء اسحاق ڈار، عطا اللہ تارڑ اور وزیر اعظم کے معاون خصوصی طارق فاطمی بھی وزیر اعظم کے ہمراہ تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور امیر قطر کے درمیان اقتصادی تعاون، توانائی کی شراکت داری کے حوالے سے تعاون بڑھانے پر بات چیت کی جائے گی۔ دونوں فریقین تجارت، سرمایہ کاری، توانائی اور افرادی قوت کی برآمد کے شعبوں میں اشتراک کو مزید آگے بڑھانے کے حوالے سے تبادلہ خیال کریں گے۔ وزیر اعظم کا یہ دورہ دونوں ممالک کے درمیان گہرے برادرانہ تعلقات کی عکاسی کرتا ہے، تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے لیے ان کے مشترکہ عزم کو اجاگر کرتا ہے۔ سعودی عرب سمیت 19 ممالک کی مغربی کنارے پر اسرائیلی قبضے کے فیصلے کی مذمت۔ مغربی کنارے پر اسرائیلی کنٹرول بڑھانے کی کاوشوں پر عالمی تشویش، عرب لیگ اور OIC کی بھی مذمت۔ مشترکہ اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ اعلامیہ کے مطابق تبدیلیاں بہت وسیع نوعیت کی ہیں۔ اسرائیل کی غیر قانونی آباد کاری کی سرگرمیوں کو تیز کیا جا رہا ہے۔ اسرائیلی انتظامیہ کو مزید مضبوط کیا جا رہا ہے۔ سعودی عرب، برازیل، فرانس، ڈنمارک، فن لینڈ اور دیگر ملکوں کا مشترکہ اعلامیہ آئس لینڈ، انڈونیشیا، آئرلینڈ، مصر، اردن، لکسمبرگ اور ناروے بھی شامل ہیں۔ فلسطین، پرتگال، قطر، سلوینیا، اسپین، سویڈن اور ترکی نے مشترکہ بیان میں کہا کہ زمینی حقائق تبدیل کرنے کی پالیسی روکی جائے۔ اور دہشت گردی ناقابل برداشت ہے، شہداء کے خون کا بدلہ لیا جائے گا، حکومت کا افغانستان کو پیغام۔ وفاقی وزیر پارلیمانی امور طارق فضل چودھری نے سینٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ ترلائی، بنوں اور باجوڑ حملوں کے تانے بانے افغانستان سے جا ملتے ہیں۔ ہم صرف جنازے اٹھانے کے لیے نہیں ہیں، ہم صرف جنازے پڑھنے کے لیے نہیں ہیں۔ ہمارا یہ مصمم ارادہ ہے پاکستان کی سویلین قیادت کا اور ہماری آرم فورسز کا کہ پاکستان جو ہے وہ اس سے زیادہ برداشت نہیں کر سکتا۔ مسجد پہ حملہ ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ جو بنو اور باجوڑ میں خودکش حملے ہوئے، ان تمام کے تانے بانے جو ہیں وہ افغانستان کے ساتھ ہیں۔ لہٰذا یہ فیصلہ کیا گیا کہ ایک فیصلہ کن جواب جو ہے افغانستان کو دیا جائے۔ اس کے نتیجے میں افغانستان میں جو 21 فروری کو ان کے 3 صوبوں میں نگرنہار میں، پکتیا اور خوست میں ہماری ایئر فورس نے ایئر سٹرائکس کی اور وہاں پہ 100 سے زائد کثیر تعداد میں جو ان کے آپریشنل ہیڈز لیول کے الخوارج اور جو دہشت گرد نیٹ ورک کو کنٹرول کرنے والے دہشت گرد تھے، ان کی ہلاکتوں کی اطلاع ہے۔ بالکل حق رکھتا ہے کہ وہ اپنے دفاع کے لیے، اپنے رائٹ آف سیلف ڈیفنس کے لیے یہ کاروائیاں کرے اور ان دہشت گردوں کو وہاں پہ انہیں جو ہے وہ ان کے اوپر جو ہے وہ سٹرائکس کرے۔ پاکستان کے ایک ایک شہید کا، خواہ وہ سویلین ہو، خواہ وہ ہمارا سیکیورٹی فورسز سے اس کے خون کا بدلہ لیا جائے گا۔ پاکستان کے ایک ایک چپے کا دفاع کیا۔ افغانستان میں فضائی حملوں کے بعد طالبان نے پاکستان سے رابطہ کر کے بات چیت کی درخواست کی ہے، تاہم اسلام آباد نے واضح موقف اختیار کیا ہے کہ کابل کے ساتھ ابھی بات چیت کرنا ممکن نہیں۔ اس حوالے سے مزید کیا تفصیلات ہیں، آئیے جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ افغانستان کے 7 مقامات پر ایئر سٹرائکس، افغان طالبان کی معاملے پر مذاکرات کی درخواست، فی الوقت بات چیت ممکن نہیں، پاکستان کا جواب۔ سفارتی ذرائع نے بتایا ہے کہ افغان طالبان کو پالیسی سے آگاہ کیا گیا کہ دہشت گرد گروہوں کے خلاف کارروائی کی جائے، تب ہی بات ہو سکتی ہے۔ ذرائع نے مزید بتایا کہ پاکستان کے موجودہ موقف کی بنیاد یہی ہے کہ طالبان کے ساتھ جب بھی بات چیت ہوئی ہے اس پر کوئی عمل درآمد نہیں ہوا۔ افغان طالبان سے جب بھی کوئی بات چیت ہوگی تو اس کا ایک ہی نقطہ ہوگا کہ دہشت گردی کو روکیں، اور اگر افغان سرزمین سے دہشت گردی ہوگی تو پاکستان دوبارہ جواب دے گا اور دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا جائے گا۔ سفارتی ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ موجودہ صورتحال میں افغان بارڈرز بند ہی رہے گا اور فی الحال کوئی تجارت نہیں ہوگی۔ دنیا سے خبر ہے کہ مشرق وسطی میں ایران اور امریکہ کے درمیان تناؤ کی بنا پر جنگ کے سائے گہرے ہو گئے ہیں۔ امریکہ نے طیارہ بردار بحری جہاز جیرالڈ آر فورڈ کے ذریعے خطے میں فوجی پیش قدمی بڑھا دی ہے۔
ईरान ने अपने हुर्मुज़ में सियात 3G मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया। जौहरी मुज़ाकरात का तीसरा दौर ओमान की सालिसी में जिनेवा में होगा। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी बढ़ने लगी। खित्ते में अमेरिका की बड़ी फौजी पेशकदमी। अमेरिका का एक और तैयारा बरदार जहाज जेराल्ड आर फोर्ड बहेरा रूम पहुंच गया। ईरान ने अबनाए हर्मस में तवील फासले तक मार करने वाले बहरी दिफाही मिसाइल सियात 3G का कामयाब तजुर्बा किया। मिसाइल ने जंगी बहरी जहाज से पहली बार वर्टिकल लॉन्च के जरिए हदफ को कामयाबी से निशाना बनाया। ये सिस्टम समंदर में 150 किलोमीटर तक एक दिफाही हिसार कायम करने की सलाहियत रखता है, जो ड्रोन्स, लड़ाका तैयारों और क्रूज मिसाइल्स को रोक सकेगा। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमेरिकी सदर ईरान के खिलाफ एक महदूद इब्तदाई हमले पर गौर कर रहे हैं। अगर इसके बावजूद ईरान जौहरी प्रोग्राम से दस्तबरदार ना हुआ तो आने वाले महीनों में एक बड़ा हमला भी किया जा सकता है। अखबार के मुताबिक पसे पर्दा दोनों फरीक एक मुतबादिल तजवीज़ पर भी गौर कर रहे हैं, जिसके तहत ईरान को महदूद सतह पर सिर्फ तिब्बी तहकीक और इलाज के मकासद के लिए यूरेनियम एनरिचमेंट की इजाज़त दी जा सकती है, ताकि फौजी तसादुम से बचने का रास्ता निकाला जा सके। ताहम ये वाज़ेह नहीं कि दोनों में से कोई फरीक इस तजवीज़ पर आमादा होगा या नहीं। उधर ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है कि ईरान सरेंडर का मतलब नहीं जानता, अपनी सरजमीन की खिलाफवर्जी कबूल नहीं करेंगे, बाहमी एहतराम के बगैर कोई मुआहदा नहीं होगा। ईरान ने डील न की तो उनके लिए बहुत बुरा होगा। जनरल डैनियल से मंसूब ईरान पर हमला ना करने की खबरें जाली हैं। उन्होंने ईरान के खिलाफ महदूद हमलों या जंग ना करने की बात नहीं की। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ट्रुथ सोशल पर बयान, कहा ईरान से मुमकिन जंग से मुतालिक गलत खबरें फैलाई गई। ईरानी अवाम अजीम है, उन्हें नुकसान नहीं होना चाहिए। और जंग हुई तो पूरा खित्ता लपेट में आएगा। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा की अमेरिका को धमकी। उनकी जानिब से कहा गया कि जंग के असरात सिर्फ दोनों ममालिक तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि खित्ते को भी अपनी लपेट में ले लेंगे। काजिम गरीब आबादी ने जिनेवा में UN की इंसानी हुकूक काउंसिल में खिताब करते हुए अमेरिका और इसराइल का नाम लिए बगैर कहा कि ईरान के दुश्मन ने 12 रोज़ा जंग में सख्त और दर्दनाक शिकस्त खाई। इस बार अफरा तफरी और बदअमनी के जरिए एक और फौजी ऑपरेशन की राह हमवार करने की कोशिश की है। खबरदार किया कि दुश्मन जंग शुरू करने के काबिल हो सकते हैं, लेकिन वो इसे ख़त्म नहीं करेंगे। अमेरिका ने लेबनान में गैर जरूरी सिफारतकारों को मुल्क से निकलने का हुक्म दे दिया। यह फैसला ईरान से बढ़ती हुई कशीदगी और मुमकिन फौजी तनाज़े की बुनियाद पर किया गया। हुक्म में उनके अहले खाना भी शामिल हैं, जबकि सिफारतखाना मामूल के मुताबिक जरूरी अमले के साथ फाल रहेगा। सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर सिफारतकारों की मकामी नकलो हरकत पर पाबंदियां भी लगाई गई हैं। इस इक़दाम के पस मंजर में अमरीकी फौजी तैनाती और ईरान के साथ मुज़ाकरात भी शामिल हैं। रमज़ानुल मुबारक बरकतों, रहमतों और मग़फ़िरत का महीना है। रमज़ानुल मुबारक की छठी सहरी पर शहरी बाज़ारों में पकवानों की खरीदारी में मसरूफ़ दिखाई दे रहे हैं। दूध, दही और खाने पीने की अशिया की खरीदारी भी इस वक्त जारी है, जबकि घरों में भी सहरी के लिए खुसूसी पकवान तैयार किए जा रहे हैं। अपने नाज़रीन को बताएं कि रोज़ की तरह आज भी वही मनाजिर हैं जो कि हम अपने नाज़रीन को दिखाते रहे हैं कि सहरी का एहतमाम खुसूसी तौर पर किया जा रहा है। घरों के अंदर पकवान भी तैयार किए जा रहे हैं और शहरी बड़ी तादाद में बाज़ारों का भी रुख कर रहे हैं, जहां पर फूड पॉइंट्स पर खासा रश दिखाई दे रहा है। कोई निहारी पर हाथ साफ कर रहा है तो कोई नान चने से अपनी सहरी को लुत्फ़अंदोज़ बना रहा है और साथ ही साथ उनके दोस्त अहबाब भी मौजूद हैं। इस हवाले से ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं मुख्तलिफ शहरों में मौजूद अपने नुमाइंदगान से। लाहौर से हमें रिपोर्ट करेंगे ज़ैन अली, कराची से हमारा साथ देंगे अजहर जैदी, जबकि फैसलाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे सुल्करनैन। सबसे पहले हम चलेंगे लाहौर की जानिब और ज़ैन से जानेंगे कि लाहौरी अपनी छठी सहरी को किस तरह से इंजॉय कर रहे हैं, क्या क्या ख़ास एहतमाम किया गया है आज लाहौरियों की जानिब से, बताइएगा ज़ैन। आज बिल्कुल रमज़ानुल मुबारक की आज छठी सहरी है और जो रौनके हमें रमज़ान की पहली सहरी को देखने को मिली थी और वही जो है वो छठी सहरी को भी उसी तरीके से रौनके जो है वो लाहौर की जो है वो सहरी के वक्त बरकरार हैं और बड़ी तादाद में लाहौर ये छठी सहरी करने के लिए भी जो है वो मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स का रुख कर रहे हैं। इस वक्त मौजूद हूँ मैं लाहौर की शाही मोहल्ला स्ट्रीट में, जो कि एक के हवाले से एक कदीमी स्ट्रीट समझी जाती है। यहाँ पर जो मशहूर नान पाए जो है वो काफ़ी ज़्यादा मशहूर हैं और बड़ी तादाद में लाहौरी जो है अपने दोस्तों के हमरा इस पाए खाने को जो है वो बाहर इस स्ट्रीट का जो है वो रुख किया है। जबकि इसी के साथ साथ
यहाँ पर मौजूद लाहौर ये शहरी जो है वो कोई हलवा पूड़ी खा रहा है तो कोई देसी मुर्ग से जो है वो सहरी का लुत्फ़ उठा रहा है। जहाँ पर दोस्तों की बड़ी तादाद है वहीं पर जो फैमिलीज़ है वो भी यहाँ का रुख कर रही हैं, क्योंकि लाहौर ये क्योंकि खाबों के शौकीन हैं और वो ज़्यादातर जो है वो देसी खानों को तरजीह देते हैं। और अगर सहरी देसी खाने से ना की जाए तो लाहौरियों की सहरी जो है वो नामुकम्मल रहती है। ये शाही मोहल्ला स्ट्रीट ना सिर्फ रमज़ान के सहरी के वक्त बल्कि सारा साल भी इसी तरीके से यहाँ पर जो है वो रौनकें जो है वो देखने को मिलती हैं, लेकिन रात गए तक इस वक्त रौनकें जो है वो सिर्फ सहरी के वक्त ही देखने को मिलती हैं। और आज के रोज़ भी जो है वो छठी रह सहरी के मौके पर भी जो है उसी तरीके की रौनकें हैं जो हमें पहले रमज़ानुल मुबारक की सहरी के वक्त जो है वो मिली थी। इस हवाले से जहाँ पर यहाँ पर आए जो शहरी थे उनसे हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि यहाँ के जो है वो ख़ास तौर पर जो पाए हैं वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, उन्हीं यहाँ के पाए काफ़ी ज़्यादा फेमस है और उनको खाने के लिए और सहरी का मज़ा दुबाला करने के लिए वहाँ पर पहुँचे हैं। कराची से अज़हर ज़ैदी हमारे साथ मौजूद है। अज़हर, आज आप कहाँ पर मौजूद हैं और क्या कुछ देख रहे हैं? क्या मज़े के खानों की जो है वो तनावुल कर रहे हैं इस वक्त शहरी? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त ओल्ड सिटी एरिया में गार्डन के इलाके शू मार्केट के अंदर मौजूद हूँ, जहाँ शहरियों की बड़ी तादाद जो है यहाँ पर आई है और मुख्तलिफ़ खानों से जो है वो सहरी से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। जबकि मैं जिस रेस्टोरेंट पे मौजूद हूँ यहाँ पर जो है शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद है जो बारबेक्यू के मुख्तलिफ़ आइटम्स जो है वो मंगवा रही है। इसके अलावा प्लेटर्स बनवाए जा रहे हैं सहरी के लिए और इसके अलावा कढ़ाई है और फास्ट फूड भी जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा फेमस है। कुछ लोग जो है फूड खाते हुए दिखाई दे रहे हैं तो कुछ लोग जो है वो देसी खाने खाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, जबकि ज़्यादातर जो यहाँ पर लोग हैं वो बारबेक्यू से जो है सहरी से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। शहरियों की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। लोग अपने दोस्त अहबाब के साथ जो है यहाँ पर आए हुए हैं और लोग जो है फैमिलीज़ के साथ भी आए हुए हैं और कुछ लोग जो घरों पे बैठे हुए हैं वो पार्सल भी यहाँ से मंगवा रहे हैं, जबकि ऑनलाइन राइडर्स से भी जो है यहाँ से फूड डिलीवरी जो है वो करवाई जा रही है। जब इस वक्त भी यहाँ पर जो है शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद है। और मैं आपको बताता चलूँ कि कुछ लोग जो है चाय पराठा भी खाते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ चाय से पराठे खाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं और दोस्त अहबाब के साथ जो है यहाँ पर आए हुए हैं। शहरियों का यही कहना है कि सहरी का जो लुत्फ़ है वो बाहर जो है दोस्त अहबाब के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ जो है, फैमिलीज़ के साथ जो है वो बाहर ही आता है। और घर में तो रोज़ ही खाते हैं लेकिन बाहर जो है सहरी करने का अपना ही एक लुत्फ़ होता है। इसीलिए जो है शहरियों की बड़ी तादाद जो है शहर के मुख्तलिफ जो फूड स्टॉल हैं उनका रुख कर रही है, फूड स्ट्रीट ठीक है, शहरियों की बड़ी तादाद फूड स्टॉल्स का रुख कर रही है। साथ ही रहिएगा। अब हम चलेंगे फैसलाबाद की जानिब और जानेंगे अपने नुमाइंदे जुल्करनैन से। जुल्करनैन, आप कहिएगा, जैसा कि अभी लाहौर और कराची के नुमाइंदगान ने बताया कि वहां पर जो है शहरियों का रुझान देसी खाबों और बारबेक्यू की तरफ ज्यादा है। फैसलाबाद के शहरियों का रुझान किस तरफ है? क्या सहरी इंजॉय कर रहे हैं आज वो? देखिए, फैसलाबाद के शहरियों का रुझान भी देसी खानों की तरफ है। अगर फैसलाबाद की बात की जाए तो फैसलाबाद में भूख बढ़ाने वाली खुशबू वाली निहारी जो है उस तक शहरियों की तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है। अगर हम निहारी उसमें बीफ की रेड मीट की जो बोटी है और उस पर अदरक और ब्राउन किया हुआ प्याज, लेमन, हरी कटी हुई मिर्च और गर्मा गर्म नान, ये मेन्यू इस वक्त फैसलाबाद में चल रहा है। और इसकी जो सोंधी भूख बढ़ाने वाली खुशबू है वो इंतहाई लजीज है। और शहरियों की बड़ी तादाद इस वक्त जो है वो मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स पर मौजूद है, दोस्तों के साथ वक्त गुजार रहे हैं और फैमिलीज़ मौजूद हैं। मुख्तलिफ मेन्यू है, भरपूर किस्म का जो है वो तगड़ा खाना खाया जा रहा है, जिसमें आज के मेन्यू में फैसलाबाद के शहरियों ने निहारी को सरे फहरिस्त रखा हुआ है। जिस तरह से दीगर शहरों से भी नुमाइंदगान आपको बता रहे थे, उसी तरह से जिस तरह से निहारी की मंजर कशी है तो यकीनी तौर पर आपके लिए भी मुश्किल होगा कि इतने वसी मेन्यू में आप भी आज की सहरी में क्या डिसाइड करेंगे। इसी तरह से फैसलाबाद में भी वसी मेन्यू है जिसमें निहारी है, बड़े पाए हैं, छोटे पाए हैं
और मगज़ है, मुख्तलिफ़ किस्म के जो देसी खाने हैं। और आज तो हमने ये भी देखा है कि फैसलाबाद के मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स पर शहरी भटूरे और पूरी से भी सहरी करते हुए हमें दिखाई दिए हैं। शहरियों से हमारी बात भी हाथ साफ किया जा रहा है और सहरी का इत्माम किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया ज़ुफ़रनैन, आप हमें फैसलाबाद से आगाह कर रहे थे। लाहौर से ज़ैन हमारे साथ मौजूद थे, जबकि अज़र ज़ैदी ने हमें कराची से ज्वाइन किया था। आप तीनों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। इस वक्त शहरियों का काफ़ी ज़्यादा रश फूड पॉइंट्स पर दिखाई दे रहा है। आज रमज़ान मुबारक की छठी सहरी का एहतमाम किया जा रहा है। मुख्तलिफ शहरों में लोग घरों में भी एहतमाम कर रहे हैं और फूड पॉइंट्स पर भी खासा रश दिखाई दे रहा है।